Let's start the new video, how to identify chemical reactions. Basically, this topic is very common, but let me think. We will consider like a particular sign, which are the sign to identify a proper chemical reactions and how we can go into the deeper side. Let's consider this chemical reactions and equation, class 10 chapter. Now, quick recap of the previous video. Already you have the video regarding this reactant changes into the substances. I will put the link of this video in the description below as well. And the challenge for this video is we cannot always see atoms rearranging the directly, right? So we have to observe the chemical reactions and its changes. Then we can get to know about the chemical reactions. So क्या क्या है particular identification regarding the chemical reactions, क्या क्या होते टॉपिक्स? तो नंबर वन, चेंज इन द स्टेट. नंबर टू, चेंज इन द कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस. जैसे कई बार एफरवेंसेस, जिसको हम गैस बोल सकते हैं, बबल्स जो कि बाहर आते हैं. जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं तो H2 कॉमन आता है, उसके बाद H2S, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मेनी टाइम, या फिर वाटर वेपर भी आ सकते हैं मेनी टाइम. ओके, now change in the temperature, sometimes the reactions get absorbs of the heat or releases of the heat. So endo and exothermic ये reactions, endo and exo, ये particular जो symptom sorry characteristics है उससे हम पहचान सकते हैं. Now formation of the precipitate, कुछ salt, कुछ precipitate white, या फिर different types of the color के आपको मिल जाते हैं, जैसे कि precipitate of CuSO4, precipitate of ZnSO4. तो इस तरह के आपको precipitate मिल जाते हैं जो कि salt form में होते हैं. Now sign one, that is change in the state. Properly you can see that the gaseous state of hydrogen, gaseous state of oxygen, but you will get the water in a liquid, basically the aqueous form. Which one? Aqueous form means a liquid form. So chemical reaction may change in the physical state according to the participating substances. गैस है तो आपको यहाँ पर लिक्विड मिल जाता है. Now state transitions, like gas, you will get the liquid water. So important change is that, right? But always ये नहीं होता है, but इस reaction में हो रहा है. Now physical change versus chemical reactions. तो यहाँ पर जो है particularly ice into water, आप यहाँ पर भी बोल सकते कि आइस सॉलिड था और बाद में आपको लिक्विड मिल गया, लेकिन ये तो केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, लेकिन नहीं है. ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फंडामेंटल जस्ट फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है. हम वाटर को फिर से आइस कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रैक्टिकल अगर देखें यहाँ पर केमिकल चेंजेस का, तो H2O2 and H2O formation, this is the chemical new formation, right? So new substances formation is true key to identify this one. Now sign 2 is color combination, change in the color. So आपको देखना है कि material setup according कैसे थे. INL immerse in copper sulfate, that is CuCO4, एंड इसको अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ग्रे INL, तो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा ग्रीन सॉल्यूशन आयन सल्फेट. विच वन? आयन सल्फेट फॉर्म होगा. प्रॉपरली अगर रिएक्शंस हम यहाँ पर लिखे तो हम क्या कर रहे हैं कि Fe जो कि आयन नेल है वो डाल रहे हैं CuSO4 के अंदर, और आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मिल जाएगी. विच वन डिस्प्लेसमेंट? ये जो Cu है ये कॉपर सल्फेट के साथ मिल जाएगा, एंड यू विल गेट दिस FeSO4, एंड ये Cu सेपरेट हो जाएगा, Cu आपको सेपरेटली मिलेगा. सो ब्राउन कोटिंग आपको इस पर्टिकुलर नेल के ऊपर मिल जाएगी, जो कि प्रॉपरली अगर देखो तो ये चेंज इन द कलर है. सो ये भी केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है. नाउ we have the chemical reactions, just I discussed with you. Atomic process अगर बोले तो copper sulfate disappears from the solution, you will get iron sulfate newly synthesized, this one iron sulfate, and solid copper metal deposits out, ये deposits out है. Color change indicates the emergence of the fresh chemical species or substances. Now some like evolution of gases, this is a sign 3 for the identification of the chemical reactions. Now experimental setup, you can see this one, zinc reacting with the dilute HCl,
This is in the dilute form, means at addition of water, HCl. So in this reaction you will get H2 as a byproduct, but this is evolution of gas. Evolution, whenever the this one particular ये एरो दिखे आपको, आप समझ जाना कि दिस इज इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस बाहर जा रहा है ना. सो कंटिन्यूस बबलिंग एंड गैस रिलीज ऑब्जर्व अराउंड द मेटल सरफेस, दिस इज आइडेंटिफाइड एज H2. आपको ये हाइड्रोजन मिलेगा. नाउ POP test for the hydrogen. Step 1, collect the evolved gas and bring burning the matchstick close to the opening container. You will get to know that gas burns rapidly with the characteristic of POP sound. Pop ऐसा आवाज आएगा आपको. Finally, you will get conclusion that the distinct audible feedback positively confirms that the presence of hydrogen gas. देखो H2 गैस पहचानने का आपके पास ये मतलब जो टेस्ट है वो यही है कि आपको मैच स्टिक बॉक्स की एक तीली पास में लेके जाके लगानी है. अगर पॉप आवाज आ रहा है एक पर्टिकुलर आप बोलो कोनिकल फ्लास्क में कर रहे हो रिएक्शन, या फिर एक क्या बोलूँ मैं आपको, एक बीकर में कर रहे हो या फिर टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये आवाजें इस गैस की आनी चाहिए. आपको माचिस की तीली यहाँ पर पकड़नी है, राइट. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. आर बबल्स ऑलवेज प्रूफ? बबल जो आ रही है वो प्रूफ ही है कि ये हाइड्रोजन या फिर कोई भी गैस? नो. ऑब्जर्वेशन इज नॉट इनफ बिकॉज ऑलवेज वेरीफाई दैट वेदर द ब्रांड new substance has formed or not. So bubbles are formed, no chemical reactions this one substance is produced when this parallelly you will get water to water, this one what we can say that water gas or water vapor. water liquid से अगर water gas मिल रहा है आपको, जैसे कि आप एक बर्तन में बॉईल कर रहे वाटर को, तो आपको जो गैस मिलेंगे ऊपर, तो ये गैस नॉट नीडेड कि ये केमिकल सब्सटेंस ही है या फिर एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन जैसा ही गैस है, ये तो सिंपल वाटर की गैस ही थे. नाउ साइन फॉर चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज होता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर. सो थर्मल डायनेमिक्स अगर देखें तो केमिकल रिएक्शंस कैन ईदर रिलीज थर्मल एनर्जी एक्सोथर्मिक या फिर एब्जॉर्ब द एनर्जी दैट इज एंडोथर्मिक. सो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा आपको CaOH2 एंड हीट रिलीज करेगा, दैट इज एक्सोथर्मिक. एंड ऑब्जर्वेशन आपको क्विक लाइम, ये जो है क्विक लाइम CaO, इसका नाम आपको याद रखना है, क्विक लाइम. तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये वेसल्स बिकम्स एक्सेप्शनली हॉट ड्यू टू द मैसिव हीट लिबरेशन ड्यूरिंग द स्लैकिंग. ये जो स्लैकिंग रिएक्शन है इसमें हीट आपको मतलब रिलीज काम करते हुए नजर आएगी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब भी करते हैं, राइट. सो ओल्ड केमिकल रिएक्शंस का बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू इनर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड नेट रिजल्ट यू विल गेट दिस वन, इंक्रीज इन द टेम्परेचर और डिक्रीज इन द टेम्परेचर. साइन फिफ्थ, आप फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में PPT बोलते हैं. PPT इज नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हियर, ये प्रेसिपिटेट होता है. जैसे कि एन इनसॉल्युबल सॉलिड होता है फॉर्मिंग ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सॉल्यूशन मैट्रिक्स, इसको हम PPT या फिर दिस वन प्रेसिपिटेट बोलते हैं. सो जैसे कि प्रेसिपिटेट यहाँ पर जो मिल रहा है आपको, ये डेंस कलर का व्हाइट सॉलिड पार्टिकल मेश, दिस वन कौन सा BaSO4, और आपको बाद में ये सॉल्ट भी मिल जाता है ड्यू टू द दिस वन रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड. विजुअलाइजेशन प्रेसिपिटेशन का आप कैसे देखोगे PPT का, तो सिंपल प्रोसेस है. बिफोर मिक्सिंग देखना, आफ्टर मिक्सिंग देखना है. न्यू सॉलिड अगर आपको मिल रहा है कुछ इस तरह का बेरियम सल्फेट के जैसा, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेसिपिटेट रहेगा. क्या रहेगा? प्रेसिपिटेट. इजी टर्म्स है, आपको समझ में आएगा. नाउ बट मेक श्योर करना है कि वो इनसोल्युबल इन वाटर होना चाहिए. आफ्टर दैट एग्जाम के लिए क्या है, साइंस आर एविडेंसेस, ठीक है. वन इंडिकेटर, टू साइंस या फिर सेवरल इंडिकेटर साइमल्टेनियसली आपको चेक करना है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही आपको एक एम्पिरिकल एविडेंस है केमिकल रिएक्शंस होने का. अदरवाइज किसी को भी आप केमिकल रिएक्शंस नहीं बोलेंगे, केमिकल चेंज भी हो सकता है. ओके, सो दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर रहेगा. ओके, now physical or chemical change, solution 1, solution 2, solution 3, solution this one.
सिचुएशंस की। तो जैसे सॉल्यूशन 1 में क्या है सिचुएशन, आपको मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, इस सॉल्यूशन को आप इस सिचुएशन को केमिकल रिएक्शन बोलोगे क्या? इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, ये सॉल्यूशन ना बोलो आप, ये सिचुएशन ही बोल दो, बिकॉज ये एक फिजिकल चेंज है। आयरन रस्ट इनटू द मॉइस्ट एयर, तो ये केमिकल रिएक्शन यस लाइक एब्सोल्युटली और ये डेफिनेटली नहीं है केमिकल रिएक्शंस। नाउ we have the kind of solution practices solutions, milk into curd, this one and this one। तो chemical reactions आपको दो मिल गई है, बाकी physical changes, ये physical change, ये भी physical change। now advanced concept check थोड़ा सा कर लो, which observation is technically not sufficient by itself to prove the chemical reactions। तो देखो color change होता है, then gas bubbles भी होते हैं, और change in the temperature, and this one formation of the new। so this one A B C D occasionally occur during the physical based changes, so correct answer D, absolute definite, this one proof, right? so formation of new substance, मोस्ट करेक्ट, मतलब ऑलवेज आपको मिलता ही मिलता है, हर बार टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, हर बार आपको कुछ गैस नहीं मिलेगा। केमिकल चेंजेस का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सिंपल थिंग्स आपको पता है, मैं स्किप कर रहा हूँ इस टॉपिक को। सो क्या क्या वीडियो में देखा है, ये सारी बातें हमने सेलेक्ट की हुई थी। गोल्डन रूल आपको यही है, लास्ट वीडियो में जो बोला था वही, और थोड़ा सा आप ये क्विक रिवाइजन कर लो, चाहे तो आप इसका पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ जो इमेजेस हमने यूज किए उसका क्रेडिट पर्टिकुलरली किसी वेबसाइट को जाएगा, जैसे कुछ इमेजेस को। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम देखेंगे कि हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशंस लाइक दिस वन, और प्रॉपर जो भी पर्टिकुलरली कैटालिसिस्ट आएंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, उनके क्या सॉलिड सेट्स आएंगे या फिर सिंबॉलिक फॉर्म आएंगे, एटम बैलेंस्ड कैसे करने, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो let's meet into the next video, till then tata, bye bye।